مذہب الدین صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے ایمان افروز کتاب سماج سے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اب آئیے بلا تاخیر صدارتی خطاب کے لیے حضرت پیر طریقت سید شاہ حامد حسین سثاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر کل ہند سنی علماء بورڈ سے ملتمس ہوں کہ وہ عزت یوم القرآن سے مخاطب کریں. مشغلے دنیا کے بیکار بنا دیتے ہیں. مشغلے دنیا کے بیکار بنا دیتے ہیں. سب کے دین سے کردار بنا دیتے ہیں. ہمیں سرکار دو عالم سے شفا ملتی ہے. ہمیں سرکار دو عالم سے شفا ملتی ہے. دوسرے دم ہمیں بیمار بنا دیتے ہیں. دونوں مکان کی ایک کائنات ہے. دونوں مکان کی اتنی کل کائنات ہے. نور نبی نہ ہو تو دن ہے نہ رات ہے. ایک سنت رسول بھی اب تک نہ سکی. ایک سنت رسول بھی اب تک نہ سکی. ایسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے. یہ احترام حضرت العلامہ مفتی محمد حسن صاحب وطنی اور مولانا ڈاکٹر مفتی محمد رفتار علی صاحب ناظم جامعۃ المومنات, مولانا شاہ نور الحق صاحب مشیر خانوی آل انڈیا سنی علماء بورڈ اور ہمارے رفیق خاص مرحوم صدر ملت حضرت بدرالدین صاحب کے فرزند دلوت محترم مولانا صاحب پاشا صاحب, تمام نوجوان علماء و خدا عزیز دوستوں, پیارے بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کو بہت دیر سے ہمارے حیدرآباد کے اور جو ہے امریکہ سے آئے ہوئے مہمان کا خطاب سنا ہے. میں 2-3 باتیں آپ سے بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ سے جڑا ہو جاؤں. مقصد یہ ہے آل انڈیا سنی علماء بورڈ ہمارا جو مشن ہے, ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اہل سنت الجماعت کے لوگوں کو بیدار رکھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خاصہ پیدا کریں. ہمارا اصل مشن یہ ہے. اور اس مشن کے ساتھ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے قیام کا مہینہ ہے اور ہم 25 سال سے جو مقام مسجد میں یوم قرآن کے درجے میں ہمارے علماء عبداللہ اور ہمارے کبھی سے مخاطب کرتے ہیں. اور ایک بات نہیں رکھی ہے, ابھی مفتی عبدالعزیز صاحب گجرا نے قرآن پاک کی بڑی وضاحت فرمائی. اب جو ہے مزید اس سے اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ وقت نہیں ہے وہ, لیکن ہمارا احساس یہ ہے کہ جب تک ہم صاحب قرآن کو اپنے ذریعے نظر نہ رکھیں اس وقت کا قرآن سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کا سمجھنا ضروری ہے, اور جو لوگ صاحب قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں وہ قرآن ہی نہیں سمجھتے. اس لیے قرآن پاک 23 سال میں مکمل ہوا ہے, اور قرآن پاک جو ہے ہماری حیات اور ممات کا دستور ہے. اور قرآن پاک جو تمام چیزیں محفوظ ہیں جو ہماری زندگی کے لیے, ہماری موت کے لیے, ہمارے موت کے بعد بھی کیا کام میں آنے والی ہے, تمام چیزوں کی وضاحت کرنے کے لیے.
मगर हमारी जो नसीबी है ये पहले तो कुरान पढ़ते नहीं, और अगर कुरान पढ़ते हैं तो समझते नहीं, और समझते हैं तो अमल नहीं करते। ये हमारा जो है एक वसीला है, और इससे हम इनकार नहीं कर सकते है कि दो लोग जो कुरान पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, मदरसे भी चला रहे हैं, वो काबिल तारीफ है और वो रहनसाजी का भी काम कर रहे हैं। और जो अब हमारा जो मसला है, हमारा मसला ये है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्शादात को पेश नजर रखें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तुम अपने वालिदैन की खदमत करो। आप अंदाजा लगाइए, हम अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक रखते हैं, हमारे वालिदैन की हम क्या खदमत करते हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप का जन्नत का दरवाजा है, लेकिन हमारा भाग्य ये हो गया है जिनके बच्चे और हिंदुस्तान से बाहर है, या गल्फ में है, या सऊदी में है, या अमेरिका में, किसी भी जगह हो, वालिदैन को अपने जो है ओल्ड एज में शरीक कराते हैं। आप अंदाजा लगाइए, सरकार का इख्तियार है कि तुम जो है अपने वालिदैन की दुआएं हासिल करो, लेकिन हम जो है हदीस मुबारक को भी सुनते नहीं और दूसरे को अमल नहीं करते। और ये हमारी बदनसीबी है कि हमारे वालिदैन जो है ओल्ड एज में हम शरीक करा ले रहे और बच्चे देते रहे, और वो वालिदैन जो अगर हम जाके मिले तो ये बोलते हैं कि हमको जो है ये पैसों की जरूरत नहीं है, हमको मोहब्बत की जरूरत है। तो आज हम मोहब्बत से दूर हो गए। और दूसरी बात, सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का क्या फरमा रहे हैं, बुरे हमनसीब से बचो, बुरे हमनसीब से बचो, क्योंकि तुम किसी के काम से कठिन हो जाओगे। हम जो है बुरे लोगों के साथ बैठने के आदि हो गए। आप मतलब लगाइए, कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन कुरान में मुझको समझदार में पढ़ते और बड़े तो समझने के लिए। तो हम जो है हमारी ज़ाहिरी मामला ये कि हदीस कुरान में बुनियादी ईमानी बातें बयान की गई है, और हदीस मुबारका में वजाहत, हदीस मुबारका वजाहत है। जो बुखारी पढ़े, जो तिरमिज़ी पढ़े, या जो लोग जो वो पढ़े, तो तमाम हदीसें जो है यही है कि आपके कुरान की तफसीर बयान की गई है, बशर्ते कि हम उसको समझने की कोशिश करें। हम जो है किसी को बोल नहीं सकते या नबी कुरान का पैगाम है जनता का होना, या नबी ईमान वालों मुस्तकीम नेक लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, उसके साथ अच्छी मामलत करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ अच्छा उनसे सलूक करो। लेकिन हम जो है कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कुरान से अमल नहीं करते। आप अंदाजा लगाइए, यही वजह है जो जिसकी वजह से जो है आज जो मौलाना ने बयान किया कि मुसलमानों के समाज का बर्बाद क्या है, मुसलमानों के समाज की वजूहत क्या है। अल्लाह रहमान ने कहा बनाकर अपनी हस्ती को, अल्लाह रहमान ने कहा बनाकर अपनी हस्ती को अगर तुम मर्तबा चाहिए, बनाकर अपनी हस्ती को तो अगर मर्तबा चाहिए, ये दाना खाक में मिलकर तुम्हें गुजार उठा। आप हमारे पास इस्लाम में कुछ भी जुड़ने नहीं है, कोई जो राय नहीं हो सकती, इसलिए ये सहाबा इकराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु को कितनी मोहब्बत करते थे, क्या अंदाज से चाहते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद करते तो पानी जहाँ से निकलता था वो पानी पीने के लिए नहीं होता। आज हम मोहब्बत की बहुत बातें करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन जब समझ का मैदान आ जाता है तो हम जो है तो हदीस सुने ये हमारी बदनसीबी है। इसलिए कि हमको चाहिए कि हम जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पे अमल करें और सरकार की हदीस पर अपने आप को काबू रखें। और अगर हम अमल नहीं करते, अल्लाह ने हर जगह कहा अमल से
जिंदगी बसती है जन्नत की जहन्नम की, ये पार्टी अपनी फितरत में जरूरी है ना पार्टी। आप अंदाजा लगाइए कि हमारी फितरत है, हम दुआएं करते हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं। आप अंदाजा लगाइए 45 मुस्लिम ममालिक है, 45 मुस्लिम ममालिक है फलस्तीन और गजा में, जो इसराइल शुरू करके 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया। लेकिन आप अंदाजा लगाइए ये कुरान सुनने वाले लोग हैं, हदीस सुनने वाले लोग हैं, ये सिखाते वाकिफ है, लेकिन आप अंदाजा लगाएंगे हक चोरी होने की वजह से मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। आप अंदाजा लगाएंगे ऐसे लोग और इस्लामी ममालिक हम क्या बचना कर सकते हैं? देखिए आप हम रिपोर्ट करेंगे कि क्या फलस्तीन का मामला है, लेकिन आप हम मामले में बोलते नहीं। और फिर मौलाना ने ईरान की एक राजनीति मामले की तरफ कर दिया, मुसलमान जो है अगुना ये जाहिरी अफवाह, ये जो है युवा, ये शमला, ये आला सब चीजें चलने वाली से आप अगर जाहिरी तौर से कुरान पाक से मुतासिर है, हदीस से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप आयत हैं, तो आपका हमारा अमल ऐसा होना चाहिए कि हमारे तमाम लोग आज बताइए आप हैदराबाद में है 2 महीने से मुसलमानों का आपस में झगड़ा और मुसलमानों का हल हो रहा है। ये बताइए गौर करिए ये किसका काम है? वो लोग का मस्जिद के इमाम साहब से अगर बोले तो वो लोग उससे मेरा तसल्लुक जो है नमाज पढ़ाने की हरकत है, मैं नमाज पढ़ाऊंगा और सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ आप देख लीजिए पढ़ा रहा हूँ चलेगा। अगर हम किसी मुफ्ती से बोले तो मुफ्ती साहब ये बोलते हैं मैं मदरसे में जो है पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ये मामले में आपके लिए आवश्यकता में किसलिए बोलता हूँ, इसलिए मदरसे में पाबंदियाँ है। आलिम ये बोल रहा है, मुफ्ती ये बोल रहा है, मुफक्किर ये बोल रहा है, ये मुसलमानों का क्या होगा? आप बताइए अब कब तक रोते रहे? हमारे हैदराबाद के एक शायर जो है उस्ताद शोरा थे, उन्होंने कहा कि ऐसे मिला करो कि करें लोग, ऐसे मिला करो कि करें लोग आदमी, ऐसे रहा करो कि जमाना मुस्लिम। आप बता लगे हमारे अखलाक इंतहाई कब लोग से अखलाक हमारे कब लोग के सरकार बुखारी की हदीस है, सरकार फरमा रहे हैं जो कुछ खर्च होगा वो दोज़ख में नहीं जाएगा, जो कुछ खर्च होगा वो दोज़ख में नहीं जाएगा, जो बदखुल्क होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। आप बताइए अब कितने लोग हैं जो खुश है और कितने लोग बदअखलाक है? हमारे पास मौलाना फाजिल साहब ये आए थे, उन्होंने कहा था कि अहले दुनिया से कभी जिंदा लगाना पड़ी। हमारे साहब के वाली भी उठोड़े उनका क्लियर सुनावा, अहले दुनिया से कभी जिंदा लगाना पड़ी, ये है वो लोग तुम्हें मिट्टी में मिलाने वाले। ऐसे लोग हम उनके साथ हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। अल्लाह और रसूल के अहकामात हमारे पास नहीं है और हम खाली ये बोलते हैं और उसके बाद हम यही कहें कि जो है कि हमारी बहुत दुरुस्त नहीं हो रही है। ये बात आप एक ही सारा पड़े पूरे कुरान पढ़ने की जरूरत है। हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तो इमाम के चारों इमाम हज़रत इमाम मालिक जो है अहले बैत अज़हार की तारीफ में बहुत बोलते, अहले बैत अज़हार की तारीफ में बहुत बोलते थे। तो आम लोग ये कहने लगे कि ये राफ़ी हो गए, ये राफ़ी हो गए हैं। अल्लाह जो है जन्नतुल फिरदौस में मुस्तक़िल होना है। आप कहें कि मुझे राफ़ी हो लेकिन मैं आगे रसूल को नहीं छोड़ सकता। और हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 जितने हैं कुरान खत्म करते। अभी मौलाना ने कहा जो कुरान को पढ़ता है वो कभी बेनाम नहीं होता।
ہمارے ساتھ آئی ہے حضرت خواجہ معین کی علیہ رحمۃ آپ نے قرآن روزانہ یہ قرآن پڑھتے اور جب رمضان شریف آتا تو دو قرآن پڑھتے حضرت بابا فرید زندے کے وہی عمل تھا. اس کے بعد حضرت بابا فرید زندے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء اور نصیر الدین چراغ سے ان کا بھی یہ لوگ قرآن کو تصویریں میں رکھتے تھے. عوام کا عالم یہ کہ لوگ ان کے قدموں میں چلے گیا. آپ بتائیے اس سے بزرگان دین ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے قدموں میں کیا آ رہے ہیں. یہ جو اللہ کے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہے, اللہ کا فضل ان کے پاس شامل ہے. سرکار کے لیے سرکار کی عنایت کا دعویٰ ان کے سامنے موجود ہے. آپ ہم سمجھ نہیں سکتے کسی بات. اور اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم کسی کی جلدی سچ بات ہونے کے لیے اگر کوئی آپ سے آپ کے نظریے کے خلاف سے بات بولا تو آپ بہت آرام ہو جائے. اگر آپ یہ غور نہیں کرتے کہ وہ صحیح بولا یا غلط بولا تو اس کے لیے کیا ہے وہ دوست ہو جو نصیحت کا کر بلاتے ہیں. کیا سمجھنے سے کہا یہ وہ دوست ہو جو نصیحت کا کر بلا کے لیے وہ دوست ہو جو نصیحت کا کر بلا کے لیے میرا ضمیر بھی کافی ہے کچھ بتا کے. اور ہم جو ہے کسی کو بولنے کے بھی قابل نہیں ہے اس لیے کہ لوگ برداشت بھی نہیں کر رہے ہیں. اور جو علماء خدا بھی جو ہے اس وقت جو ہے اپنی زندگیوں کو سنوارے ہوئے ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان کے حالات ان کے معاشی حالات بہتر ہو جائے, ذمہ داریاں ختم ہو جائیں اور یہ جو ہے مسلمانوں کی خدمت کرے. اور یہی خدمت اور آنے والے زمانے میں ہمارے لیے شام کا باعث ہوگا. میں آپ تمام کا مشکور ہوں کہ آپ نے بہت خصوص کے ساتھ ہماری سبا کی.